So this is lecture 33 according to your lesson plan, and in this lecture we are going to learn about the inverse Laplace transform. Okay, in previous lecture we had a discussion on this Laplace transform. Now in this lecture we will solve some numerical problem with the mathematical definition of the inverse Laplace transform. Okay, so अगर मैं बात करूं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो जब मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था तो वहीं पे एक फॉर्मूला बताया था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके, आईएलटी कैलकुलेट करने का. बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म we can use two method. Okay, first one is the your by using your formula which I told you. Okay, and another one by using polynomial. Of factorization. Okay, so we can rearrange our input signal in the form of polynomial. Okay, और अगर आपको डायरेक्टली गिवन है पॉलिनोमियल तो उसके हेल्प से भी हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन दैट केस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो आपने कैलकुलेट किए हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके, जैसा मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक फंक्शंस हैं ई टू द पावर ए टी यू टी, यू टू द पावर जे ओमेगा टी, इनका आपको याद होना चाहिए. ओके, तभी ये वाला पॉलिनोमियल हेल्पफुल होगा. ओके, चलिए, सो वी विल सी बोथ द केस. इन फर्स्ट केस, if by using formula, and this formula is x of t equal to 1 upon 2 pi j sigma minus j infinity sigma plus j infinity xs e to the power st ds. ओके, सो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं और एक दो न्यूमेरिकल भी इस पे कैलकुलेट कर चुके हैं. ओके, नाउ द अनदर वन इज polynomial. So I hope all of you know this polynomial. So in that case, numerator and denominator are factorized okay, and that is xs equal to s plus z1 s plus z2, okay, s plus zm upon s plus p1 s plus p2 and so on s plus pn. Okay, so you can write it down that pn because that can be different. Now, so access will be given in this form. Okay. Now, if you want to calculate the LT, inverse Laplace transform, obviously you have to calculate the value of xt. Okay.
सो अगर हमारे पास ये गिवन है, सो इजिली यू कैन राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ a1 अपॉन s प्लस p1 फैक्टर है. ओके, सो आई होप आप सभी लोग इस चीज को पढ़े होंगे. am अपॉन s प्लस pm. So in this form we can rearrange this polynomial. Okay, so एक बार अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, then obviously you can easily calculate the individual term. Okay, इसलिए मैंने बोला था कि इनका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ओके, सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको पता चलेंगे. ओके, सो वी विल सी example based on this polynomial. Okay, where a1 a2 a3 are a residue. Okay, आपको पता है कि polynomial जब आती है तो उसमें हमें we have to calculate these values. So अगर ये वैल्यू हमें a1 a2 a3 up to am की वैल्यू पता चल गई, okay, so easily you can find out the inverse Laplace transform of these. Okay, now polynomial solve करने के अलग अलग तरीके हैं. ओके, एंड आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि कॉम्बिनेशन इफ रियल जो आपके रूट्स हैं वो रियल हैं, अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, ओके, उस केस में क्या है, या जो रूट्स हैं वो मल्टीपल रिपीटेड है. ओके, सो अलग अलग कैलकुलेशन होती है. वी विल सी सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व बेस्ड ऑन दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ओके, इसको हम रख के सॉल्व कर चुके हैं. वी विल सी दिस पॉलिनोमियल केस. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, suppose find the ILT for given. Okay, so first is given fs equal to 1 upon s plus 4 sigma greater than minus 4. Now you want to calculate the ft. So I'm just writing the directly because you already solved this type of problems when you are calculating the e to the power at function or e to the power minus at function. Okay, so if you remember in previous lecture we have calculated this e to the power minus at ut का. ओके, सपोज दिस इज मल्टीप्लाइंग विथ ए. सो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इसका क्या होता था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था, ए अपॉन एस प्लस ए, सॉरी एस माइनस ए, एस प्लस ए. ठीक है, एस प्लस ए. ओके, सो इस तरह के हम न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. क्लियर? S minus. That is the question when you are solving e to the power 80. Okay, let me show you the previous lecture. Okay, anyway, so if you are going to write this is the case of, sorry, a plus. Okay, if you are writing the e to the power minus 80 ut, then it will be a upon s plus a. सो इस तरह के न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सो यहां से इजीली आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास, और ये कब आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे. अदरवाइज आपको यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके, बिकॉज एक्सेस इज गिवन, देन यू हैव टू सॉल्व इट. बट अगर आपको पता है, दिस इज सिंपलेस्ट केस, तो आपको यहाँ से आइडिया चल जाएगा. दैट विल बी द केस ऑफ, बिकॉज ए इज नॉट गिवन एनीथिंग, सो ए की वैल्यू 1 है. e to the power minus 80, a की जगह क्या है, 4 है. so directly you can write it down, that is the 40 ut. now suppose in the case of polynomial is given, means
if you want to calculate the inverse Laplace transform for Fs equal to 2s plus 4 upon s square plus 4s plus 3 and sigma greater than -1. ओके, सो आपको पता है कि जब भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते थे तो आरओसी इज मैंडेटरी, दैट्स व्हाई इन ईच क्वेश्चन सिग्मा इज मेंशन ओवर हियर। ओके, सो अब हमारे पास है क्या, एफ एस अवेलेबल है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ टी। ओके, मींस हमें यहाँ पे इनवर्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म calculate करना है। Okay, now this is the case when the polynomial is given. So for the case of polynomial, all of you know we have to factorize this polynomial. Okay, इसके factor calculate करने होंगे। So factor के लिए all of you know, आप लोगों ने सभी मैथमेटिक्स में कैलकुलेट किए होंगे। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द रूट s plus 1 s plus 3। ओके, सो जो रूट्स अवेलेबल होंगे वो 1 and 3 इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फैक्टर कर सकते हैं हम ए नॉट अपॉन एस प्लस 1 प्लस ए वन अपॉन एस प्लस 3, इसको इजीली लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट एंड ए वन। सो आप सभी को पता है कैसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो फॉर ए नॉट इफ यू वांट टू कैलकुलेट, okay, that will be calculating for when s equal to -1. So 2s plus 4 upon s plus 3 at s equal to -1. When you put s equal to -1, in that case you will get the a naught equal to 2. Okay, just try to solve. Just put the value of s equal to -1. So you will get the value of 1. Now if you want to calculate the a1, so in same manner you can calculate 2s plus 4 upon s plus 1 at s equal to -3. So from here again you will get the value is 1. Now when you calculated this value, easily you can write it down in the factorization method, with the help of factorization method or in the form of factored. So that will be 1 upon s plus 1, 1 upon s plus 3. Now you already solved such type of questions, okay, कि 1 upon s plus 1 है, means it is the form of a upon s plus a. ओके, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, s प्लस 1 मतलब स्मॉल a की वैल्यू क्या है, 1 है। सो इजिली यू कैन राइट इट डाउन e टू द पावर -80। अब a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगी, -t ut। ऐसे ही इस केस में क्या है, स्मॉल a की वैल्यू क्या है, 3 है, सो डायरेक्टली यू कैन राइट इट डाउन e टू द पावर -3t ut। In this way you can solve, or you can write it down e to the power -t plus e to the power -3t ut common. Okay, so in this way you can calculate the value. Now this is the case when you are taking ROC is sigma greater than -1. Okay, now suppose in question, okay, for example it is given, consider if it is given sigma less than -3, okay, because you are getting two roots over here. Okay, if you talk about this as in this case you will get 2. okay, एक तो आ रहा रियल पार्ट इज ग्रेटर देन -1, एक आ रहा रियल पार्ट इज ग्रेटर देन -3। सपोज इन क्वेश्चन इट इज गिवन सिग्मा लेस देन -3। ओके, सो यहां से क्या अंडरस्टूड है, अगर सिग्मा -3 गिवन होता आपका, सो रियल पार्ट मतलब इस एक्सिस पे होगा,
-3 यहाँ कहीं होता। सो ये बोल रहा है कि सिग्मा की वैल्यू है जो इस साइड होती है, आरओसी जो आपकी होती है वो लेफ्ट हैंड साइडेड होगी। सो इन दैट केस अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि वो जो लेफ्ट हैंड साइडेड वाला केस होता था, मींस अभी हम यूटी कर रहे थे, अब क्या करते हैं अगर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं इस केस में, व्हेन द सिग्मा इज लेस देन -3 मींस लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल होता, तो ऑब्वियसली इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर दैट e to the power -t दैट विल बी द चेंज। ओके, क्या चेंज होगा मैं यहां लिख रहा हूं उस केस में, -e to the power -t u of -t -e to the power -3t u of -t। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा की आपकी जो आरओसी है उस हिसाब से। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यूटी के लिए भी सॉल्व किया था, ई ऑफ -t के लिए भी सॉल्व किया था। सो आप वहां से देखोगे हम इस तरह से हमें आंसर मिलता था। सो एक तरह से आप देखा जाए इस पॉलिनोमियल में, अगर आपको पता है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं बोलता था कि आपको कुछ फंक्शंस के लैप्लास याद होने चाहिए। ओके, दैट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म।